Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter 2 acids and bases. Here we are talking about that what do all acids have in common. In the previous lecture you observed that acid they possess number of common characteristic properties. They have some same properties. सबकी properties क्या होती हैं? Same होती है, right? उनके अंदर सबके अंदर same property होती है. This show इसका मतलब chemically they have something in common. इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो इनमें कॉमन होगा, right? Here let's observe that what is common in these all acids. Here let's take a experiment. Here we are taking water and in this water would dissolve acid. हम इस acid को dissolve करते हैं. So what you observe? क्या दिखता है आपको? Can you see that when this acid dissolve तो ये ब्रेक हो जाता है. ब्रेक नहीं बोलेंगे, आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है. कैसे? HCl breaks into H plus and Cl negative. So here again these all acids convert into ions. किस में convert हो गए? Ions में. Here from it what you observe that HCl when it is dissolved in water it will give you H plus ion plus chlorine ion, right? Now separation of HCl into H plus and Cl ions will be possible in the presence of water only. जब आप एसिड को वाटर में ही क्या करोगे? डिसॉल्व करोगे तो ये क्या करेगा? आयनाइज हो जाएगा और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन, राइट? Here this H plus ion, ये जो H plus ion होता है वो अगर H2O के साथ क्या हो? मिक्स करें, वाटर के साथ जब मिक्स होगा तो एक और आयन बनाएगा और इसको बोलते हैं H3O प्लस और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम. वी कॉल्ड इट हाइड्रोनियम आयन, right? Got it? Here something more I want to tell you. Let's do one more example, right? So let's perform an experiment. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? Take 2 ml of dilute sulfuric acid. This type of examples are coming in your case-based questions, right? So that's why I'm telling to you. So here first what we are taking 2 ml of H2SO4, then another one HCl and nitric acid, that is HNO3 and acetic acid, right? So in this what you observe, क्या दिखता है आपको? In this A, B, C and D we have this 4 test tube. We are adding zinc granules. क्या ऐड किया आपने? Zinc granules, ठीक है? We observe that in each test tube the reaction starts and hydrogen gas is क्या निकल रही है इनमें सब में? हाइड्रोजन गैस, ठीक है? सो व्हाट इट शोज दैट एसिड, इसका मतलब एसिड क्या कंटेन करता है? हाइड्रोजन. क्या कंटेन करता है ये? हाइड्रोजन. बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम. लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, acetic acid that is CH3COOH, right? Formic acid that is HCOOH, right? Carbonic acid that is H2CO3, phosphoric acid that is H3PO4. We observe this all acid, ये जितने भी acids हैं, when they react so they liberate hydrogen. क्या देते हैं? Hydrogen. Implies what you observe that there is a hydrogen which is present in all these acids, right? Now one more thing I want to tell here. This here I'm saying that it's only possible because H plus ion is not stabilized. हम कह रहे हैं ये जो H plus है वो सीधा किसके साथ कर रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब इसने क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोनियम जो H plus आयन यहाँ से डिसोसिएट हुआ वो स्टेबल नहीं था. क्या नहीं था वो? स्टेबल, राइट? सो टू इन्वेस्टिगेट whether all the compounds containing hydrogen are acids or not,
अभी ये भी तो पता होना चाहिए मैम, आपने तो कह दिया हाइड्रोजन गैस निकल गया है, लेकिन ये भी तो पता हो कि अगर अगर कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करता है, क्या वो सारे एसिड्स होते हैं? क्या वो सारे एसिड्स होते हैं? सो हियर वी आर टेकिंग द aqueous solution of an acid conduct electricity due to the presence of charged particle called ion into it. What you observe, आप क्या कहते हैं कि जो भी एसिड्स होते हैं, राइट, एसिड्स के aqueous solution जब हम बनाते हैं, aqueous solution means when we dissolve it in water, सो दैट सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मैम क्यों करता है? क्योंकि हमने कहा जैसे ही एसिड्स को सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व करते हो, इट विल गिव यू H प्लस आयन। क्या देता है आपको? H प्लस आयन। अब ये क्या बना रहा है? आयंस बना रहा है, आयंस बना रहा है। और ये आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द चार्ज पार्टिकल। इन चार्ज पार्टिकल्स को ही हम आयन बोलते हैं। तो जब आयन फ्लो करेगा, जब ये आयन घूमेगा, फ्रीली आयंस होंगे, फ्री चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियस इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी मैम, राइट? सी, ठीक है। सो हियर बट वी ऑब्जर्व द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस कैन ओनली टेक प्लेस इफ दे हैव आयंस। अगर उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? आयन। दिस शो दैट एसिड्स when dissolved in water they produce H plus ion, right? Now can you see कि जहां पर H plus ion नहीं होंगे, राइट, जहां पर ये H प्लस आयन नहीं होंगे, वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, राइट? ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये जो H प्लस आयन होता है फिर दोबारा किसके साथ रिएक्ट करता है? H2O के साथ, और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन, राइट? ठीक है। तो हर एक जो H प्लस आयन होगा वो कंबाइन करेगा किसके साथ? जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो डिसोसिएशन होगी वो हाइड्रोनियम आयन देगी, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी किस चीज के लिए? फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सेम यू कैन टेक द एग्जांपल्स लाइक HCl, so it is giving H plus plus Cl negative, right? If I am talking about HNO3, so it is giving H plus plus NO3 negative, right? If I am talking about H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक होगा? H प्लस 2H हो जाएंगे ना, 2H प्लस एंड प्लस सल्फ्यूरिक SO4 2 नेगेटिव। सेम एज इट इज CH3COOH जो होगा वो भी डिसोसिएट होगा, कैसे? CH3COO नेगेटिव प्लस क्या आएगा? H प्लस। तो कैन यू सी इट हियर? यहाँ पर सारे में क्या दिखाई दे रहे हैं हमारे को? H प्लस दिखाई दे रहे हैं। सो हियर व्हाट वी से, what is the Arrhenius definition? It's very very important, so that's why I am mentioning it. It is called Arrhenius definition of acid. What is that? Acids are a substance which contain hydrogen. ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हो? हाइड्रोजन हो। और साथ में याद रखो, एंड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, जैसे आप इसको क्या करोगे? पानी में मिक्स करोगे, इट विल गिव यू क्या क्या देगा? H प्लस आयन, राइट? H प्लस आयन इन दी सॉल्यूशन। सो दिस इज व्हाट, ये क्या दिखाई देता है हमारे को कि एसिड्स किस तरह से क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और किस तरह से ये क्या करते हैं? डिसोसिएट होते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? We need to show that all hydrogen containing compound, कि क्या जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन होते हैं, क्या वो सब एसिड्स होते हैं, राइट? टेक एग्जांपल हियर। सो हियर आई एम टेकिंग C2H5OH। व्हाट इज दिस? इथाइल अल्कोहल। क्या ले लिया मैंने? इथाइल अल्कोहल। सो इन दिस व्हाट यू ऑब्जर्व, एक और ले लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। सो दो दे कंटेन ग्लूकोज, यू नो, C6H12O6। अब देखो H12 एटम्स है इसके अंदर कितने हैं? 6 हैं। नाउ स्टिल दे कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है, बिल्कुल है, राइट? बट when these two dissolve in water, जब इनको क्या किया जाता है? वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, then they do not produce H प्लस। तब हमें दिखाई नहीं देता कि H प्लस आयन दे रहे हैं, ठीक है? तब हमें नहीं दिखाई देता कि क्या दे रहे हैं? H प्लस आयन। This we can say that by checking the conduction of electricity through the aqueous solution,
it is observed that their solution does not conduct electricity. ऐसा भी कह सकते हैं ना, whether they can conduct electricity or not. बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर. इथाइल अल्कोहल एंड C6H12O6 ग्लूकोज, they have hydrogen but still they can't conduct the electricity. So what you will say, क्या कहेंगे, while dissolving into the water they do not produce H plus ion, so we say they do not conduct electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे, राइट. सो दे आर नॉट एसिडिक, ये एसिडिक भी नहीं होंगे, राइट. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ here see this experiment. Can you see, we have HCl solution, we have here HCl solution, right. In this HCl solution we have some nails, beaker with that a battery attached and a bulb and switch. So in this HCl solution what you observe कि ये जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा. पानी के अंदर जब HCl को क्या करोगे आप, मिक्स करोगे तो क्या करेगा, ग्लो करेगा. तो ग्लो करने का मतलब क्या है कि आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं. आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मैम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो इट मीन्स क्या करेगा, ये ग्लो करेगा. बिल्कुल सेम आई एम टेकिंग ग्लूकोज C6H12O6, राइट. ठीक है, इसको भी पानी में मिक्स किया. पानी में मिक्स करके क्या ऑब्जर्व करता है कि बल्ब तो ग्लो करता ही नहीं है. ठीक है, सो यू हैव एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो विद दिस. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, सो हेयर यू कैन आंसर इट इजिली, यू कैन आंसर, है ना. कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर H प्लस आयन है और दूसरे में H प्लस आयन नहीं है, राइट स्टूडेंट्स. नाउ हियर वी से फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से, conclusion is hydrogen containing compounds such as glucose and alcohol are not acidic because they do not dissociate in water. पानी में टूटते ही नहीं है, पानी में नहीं टूटेंगे तो क्या प्रोड्यूस वो करेंगे H प्लस आयन, बिल्कुल नहीं मैम, राइट. So this is here, acid does not show acidic behavior in the absence of water. It's very important, right? कि जब water होगा तो ये एसिडिक एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे. ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे अगर क्या होगा, वाटर नहीं होगा. जैसे हम H प्लस HCl ले रहे हैं. ठीक है, सिंपल HCl क्या बताएगा कि H प्लस आयन है या नहीं है. C6H12 में भी तो मैम, इसमें भी तो हाइड्रोजन है ना. तो कैसे, ओनली व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर, राइट. ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में ही है हमारा क्वेश्चन. रेन वाटर conduct electricity, right. Rain water conduct electricity but distilled water not, distilled water नहीं करता. ठीक है, why it is so? तो distilled water does not contain, क्या होता है distilled water में, एसिड नहीं होता, बेसिस नहीं होते और सॉल्ट नहीं होते. ठीक है, और ये डिसोसिएट नहीं करता. ठीक है, may dissociate to produce ion but it does not conduct इलेक्ट्रिसिटी. हो सकता है कि ये क्या करे, डिसोसिएट करे, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, राइट. बट रेन वाटर, डू यू नो रेन वाटर के अंदर क्या क्या होता है, इट कंटेन्स CO2, SO2, NO2, right. These gases when dissolved with the water it will become acidic. और वो क्या बन जाती है, एसिडिक बन जाती है, राइट. ओके, जैसे हम कह रहे हैं CO2 when dissolved with the H2O it form H2CO3. Do you know H2CO3? That is कार्बोनिक एसिड. क्या बोल रहे हैं इसको, कार्बोनिक एसिड, राइट. तो कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा है, डिसोसिएट होगा. अभी हमने सीखा डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, H प्लस साइन देगा, साथ में क्या देगा, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव. ठीक है, तो जैसे हमें H प्लस साइन मिल गया, बट वी कंक्लूड क्या कहेंगे, इट कैन कंटेन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंटेन है. क्लियर? ओके. नाउ हियर in the absence of water a substance will not form hydrogen ion and hence it will not show its acidic behavior. Like one more experiment, take 0.5 gram of copper chloride salt in a test tube. These experiments are very very important. Straightforward तो क्वेश्चन आते ही नहीं है बेटा. आपको जो भी चीजें समझनी है, यू हैव टू फर्स्ट टेक एग्जाम्पल, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे
तो वो इसी तरीके से आएंगे। एक्सपेरिमेंट पता होगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। टेक 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, add to it few drop of concentrated H2SO4. Test the gas evolve with the wet and dry litmus paper. So let's take example. Here we have taken this test tube in this concentrated H2SO4, right, with a cork and one whole stop cork. In this band tube we have taken. So here we add copper chloride. कॉपर क्लोराइड जैसे ही अब इसको क्या करेंगे, कॉपर क्लोराइड डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 में, क्या होने वाला है, CuSO4 प्लस HCl। बिल्कुल CuSO4 बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, HCl। नाउ हियर HCl produced in a form of gases, right? So here this is HCl gas. We take a dry litmus paper. Dry litmus paper पे what do you observe? There is no change. Blue litmus paper लिया हमने, सॉरी ड्राई लिटमस पेपर लिया, और लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करोगे, मॉइस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, वेट करेंगे। सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि HCl क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसे, H प्लस और Cl आयन में, विच इज ओनली वाई बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर नाउ इट गेट आयनाइज। अब ये आयनाइज हो चुका है, ठीक है। सो हियर फ्रॉम दिस वी से हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे विल ऑलवेज कंबाइन विद द वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम। क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल हियर, like if you have this acid is you will take NaCl and we take concentrated H2SO4, right, H2SO4। so what do you observe here, NaCl को आपने H2SO4 के साथ क्या किया, रिएक्ट करवाया। सो यू ऑब्जर्व हेयर NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस भी कई बार आ जाती हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो रिएक्शन होगी इट्स वेरी यूजफुल, राइट। सो इन दिस यू कैन इजिली सी दिस। नाउ वन मोर थिंग, in the humid weather, in humid weather, है ना, HCl gas may be first dried by passing through calcium chloride। क्या दिया जाता है उसको, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, टेकन इन अ गार्ड ट्यूब। कई बार ऐसा होता है कि इसमें गार्ड ट्यूब की हेल्प से इसको एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, ठीक है, राइट, ओके। नाउ HCl when it is in dry litmus paper, pass through the dry litmus paper, we say it does not form H plus and Cl, right, clear। and if we take HCl plus benzene or toluene, ठीक है, toluene, now here what do you observe that it not form H plus and Cl। तो दो तीन ये चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे तो बहुत माइनर सी चीज़ें आती हैं ये, ठीक है। तो क्यों कहा मैंने ऐसा, वाई आई एम सेइंग इट, वाई इट इज़ नॉट, बिकॉज हेयर वी से कि यहाँ पर HCl जो होता है वो ब्रेक नहीं होता, राइट, H प्लस में और Cl में, ठीक है, राइट। वाटर मॉलिक्यूल पोलर नहीं बन पाता, राइट। इफ आई से हेयर H पॉजिटिव हो जाता है और Cl नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। डिसोसिएशन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो नाउ वन मोर थिंग वी विल डू हेयर, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हमने कहा हम डाइल्यूट करते हैं किसको, कंसंट्रेटेड एसिड को, है ना। तो आपने बोला था मिक्सिंग ऑफ, डाइल्यूशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर। एसिड को किस में मिक्स करते हैं, वाटर में, राइट। इट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इट इज कॉल्ड डाइल्यूशन बिकॉज दीज डेफिनेशंस आर समवेयर यू कैन सी। तो मैं ही नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा हो कि जो स्किप हो। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व दैट व्हेन ए कंसंट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूट विद वाटर, वी ऑब्जर्व हीट इज प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, ठीक है। और अगर कहीं पर भी हीट प्रोड्यूस हो, वी कॉल्ड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में दिखेगा. द डाइल्यूशन इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, राइट. वन मोर थिंग हियर, dilution you can do here. Take a small amount of water in a beaker. वाटर लिया आपने बीकर के अंदर, राइट. अब इसका टेम्परेचर आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं. ठीक है, कुछ ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं मैंने बहुत बार देखा है, तो ये बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, राइट. वाटर लेते हैं, वाटर का टेम्परेचर नोट करते हैं. ठीक है. नाउ आई पुट हियर सम ड्रॉप ऑफ H2SO4 or nitric acid HNO3, right. So here again we note the temperature. Then what we observe that there is a rise in it. ठीक है. अब ये एक्सपेरिमेंट ऐसे आ जाएगा. कैसे आएगा? That how you can say it is an exothermic. Give an example, right. So you take water and then add this H2SO4 and HNO3. There you say that before adding it the temperature was normal, and then after adding the acid it temperature rises, implies we say that heat is evolved. Heat is evolved. ठीक है, right. Now if we add this, like if I am saying H2SO4, अब वाटर में ऐड किया H2O, तो हमने क्या कहा था, वाटर को ऐड करते ही क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव एंड प्लस हीट, राइट. सेम एज HNO3 plus H2O gives H3O plus, राइट, प्लस NO3 नेगेटिव प्लस क्या मिलती है हमारे को, हीट, राइट. ठीक है. और मैं आपको बता चुकी हूँ हाउ टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड. कभी भी ऐसा नहीं करते, क्या नहीं करते, एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते, है ना. वाटर के अंदर क्या ऐड करते हैं, एसिड. स्टर करके करते हैं, स्टर करके. क्यों करते हैं, स्टरिंग करते हैं ताकि जितना भी अमाउंट ऑफ हीट हो वो क्या होता जाए, डिजॉल्व होता जाए. ठीक है, राइट. So here this is all about, you just revise it, see the questions here, okay, and then you will get the complete knowledge of this. And we are providing the previous year questions also, so that you will get the idea that how these exams are coming in the these type of questions are coming. Thank you.